there are so many words, there may be or can be so many words, बहुत सारे words हो सकते हैं, but I'm going to give you one important word that is used a lot, जो connection के लिए use किया जाता है, मिलने मिलाने के लिए use किया जाता है, संपर्क के लिए use किया जाता है, बातचीत के लिए use किया जाता है. That is, आपने एक word सुना है, touch. The word is what? Touch. Okay? तो अब जब आप किसी को काफी समय के बाद मिलें तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं आप? लॉन्ग टाइम नो टच. क्या कहिएगा? आप अगर मेरे से राइट, मेरे से अगर आप 6 महीने के बाद मिलते हैं तो आपके पास कहने के लिए लाइन क्या हो जाती है? लॉन्ग टाइम नो टच. राइट, लॉन्ग टाइम नो टच. तो आप टच का मतलब वहां पर क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टच? मींस कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का एक काफी गैप हो गया, बातचीत का काफी गैप हो गया, तो हम लोग कम्युनिकेशन में नहीं है, काफी एक टच. वी आर आउट ऑफ टच. कैसे बोलेंगे आप? We are out of touch. हाँ, कोई फ्रेंड मिला मेरे को काफी दिनों के बाद में, लॉन्ग टाइम नो टच यार, यू वर आउट ऑफ टच. हाँ, बिल्कुल एकदम संपर्क से बाहर, कम्युनिकेशन से बाहर, बातचीत से बाहर, कोई बातचीत नहीं, कोई हाय हेलो नहीं, कोई चिट्ठी पत्री नहीं. हाँ, यू आर आउट ऑफ टच. क्या बोलेंगे आप? यू आर आउट ऑफ टच. आप एक बोलने का एक तरीका, अच्छा तरीका है, यू आर आउट ऑफ टच विद मी. कैसे बोलेंगे आप? You are out of touch with me. Alright. You are out of touch with me. You were, पास्ट में भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है? आर की जरूरी नहीं है कि आप बोलें यू आर आउट ऑफ टच. यू वर आउट ऑफ टच विद मी. यू वर आउट ऑफ टच विद मी. Yes? हाँ. You know, most of my classmates or most of my friends who were studying with me in graduation or post graduation, they are still in touch with me at present. They are still in touch. एक फ्रेज होता है, बड़ा अच्छा फ्रेज है, in touch with somebody. लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो in touch, INN touch, preposition with को ले आएंगे आप. in touch with me, in touch with somebody, in touch with my parents, in touch with my siblings. ठीक है, किसी के साथ भी आप कम्युनिकेशन में हैं, किसी के साथ भी आप संपर्क में हैं. So you have a wonderful phrase there. एक बहुत ही अच्छा सा phrase आपके पास क्या है? In touch with somebody. Yes? So most of my friends, most of my classmates are in touch with me. But कुछ दोस्त हैं मेरे. You know, I have some friends and some of my friends are out of touch. कुछ दोस्त हैं मेरे, कुछ friends हैं मेरे. They are out of touch with me. They are not in touch. और पता नहीं कैसे they have got out of touch. क्या बोलेंगे हम? हमारे पास एक बढ़िया सी लाइन होती है, they have got out of touch with me. phrases आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो. जैसे एक पहला फ्रेज हमारे पास क्या हो गया, पूरी एक लाइन क्या होगी? to be in touch with somebody. Write down, to be in touch with somebody. To be in touch with somebody. Get in touch. अगला लिखिएगा get in touch. Get in touch with somebody. अगला आप लिखेंगे keep in touch with somebody. Keep in touch with somebody. ठीक है? Yeah. Once, you know, I met my friend and after a long time I met him. तो मिलते ही मैं उसको क्या बोलूं? Long time no touch, long time no see. हाँ, मैं उसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, you are not in touch. And after just finishing your education, huh, you got out of touch. You got out of touch. Yes. But आज मिले हो आप and I don't want to lose touch with you. आज काफी समय के बाद मिले. I don't want to lose touch. Lose का मतलब किसी के संपर्क को खोना, कम्युनिकेशन को बंद करना. I don't want to lose your touch. I don't want to lose touch. So I would like to make a request to you. Please keep in touch now. Keep in touch now. Hello. After you finish your course, don't lose your touch with me.
आप कभी ना कभी अपना कोर्स तो फिनिश करेंगे। मंजू मैम, नीरजा मैम, यस, प्रमोद सर, राशिद सर, प्लीज डोंट lose your touch with me. Keep in touch, sir. After finishing. Definitely, sir. हाँ, keep in touch with me. क्या बोलेंगे आप? Keep in touch मतलब किसी Keep से in संपर्क touch बना with- करके रखिएगा. Don't lose your touch, please. हाँ, sometimes people complete their work. Yes, they finish their work and they lose touch. They get out of touch. हेलो, दे गेट मतलब हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं शब्दों की एक जादूगरी को, समझ रहे हैं आप? गेट लगाया तो क्या हो गया, कीप लगाया तो क्या हो गया, बी लगाया तो क्या हो गया, बी इन टच, गेट इन टच, कीप इन टच, मतलब संपर्क में रहिए। कीप और बी जो है वो दोनों एक ही जैसे हो गए। कीप इन टच, आप संपर्क में रहिएगा, बट डोंट लूज Be in टच touch. विथ मी। हाँ, डोंट से राशिद सर, आई वांट कीप इन टच। Exactly, sir. I won't keep it. If you will say to me this line, you know, I'm a kind of touchy person actually. I'm a kind of touchy person is what? Somebody just who is very emotional, somebody whose feelings are easily hurt, जिसकी feelings बड़ी जल्दी से hurt हो जाती हैं, जिस तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? He is very touchy. यानी जो जल्दी से रोना शुरू कर दे, जल्दी से इमोशनल हो जाए, जल्दी से गुस्सा हो जाए, जल्दी से दुखी हो जाए, अपसेट हो जाए। यस, काफी सारे लोगों को ना Yes. ऐसा भी बोला जाता है, ही इज अ सॉफ्ट टच। क्या बोलते हैं हम? ही इज अ सॉफ्ट, He is soft touch. या ही इज एन इजी टच। इजी टच, Easy and easily touch. इजी टच या सॉफ्ट टच से आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है? और इजी टच, सॉफ्ट टच का एक मतलब क्या हो गया? लाइक you have Very kind-hearted. हाँ ठीक है। इजी टच, सॉफ्ट टच का एक मतलब क्या, किसी व्यक्ति के लिए ऐसा बोला जाता है। अब समटाइम्स वी say to somebody to do something, try to understand in English. Like I went to Farah and I told Farah, I need your help today. I want 500 rupees from you. फराह ने झट से निकाल के दे दिए मेरे को। यस, बचपन में क्या होता था, मुझे अभी भी ध्यान है, व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 5 और 6 इयर्स ऑफ एज, तो मेरे कॉलोनी के कुछ जो बड़े बच्चे हुआ करते थे, वो लगभग 12 साल के, 15 साल के, 16 साल के। तो मुझे अभी भी ध्यान है, मम्मी ने कुछ अच्छा सा खाने को बनाया, तो वो लोग क्या करते थे, मेरे को घर में भेजते थे और चुपचाप बोलते थे कि तू अपने घर से ना वो लेकर के आ चुपचाप, वो जो खाने का मम्मी ने बनाया, और मैं चुपचाप ला करके उनको दे दिया करता था। So when somebody wants you to do something and you do that easily, you are a soft touch. When somebody comes to you and he persuades you, persuade का मतलब वो कुछ आपसे करवाना चाहता है, he persuades you to give him money or to do something for you, somebody persuades you to give him money, and to do something for him या for you, then आप कैसे हो गए? और आप उसके कहने में आ Easy जाते हैं। touch. You Easy are touch. an easy touch, you are a soft touch. Are you a soft touch? किसी ने कहा ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे पैसे लगा दो, ऐसे ऐसे ये काम कर लो, you are a soft touch. मतलब बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मनाने में आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। लाइक हाउ इज योर फादर? आपके फादर कैसे हैं? इज ही अ सॉफ्ट टच? Easy touch. ही इज एन इजी टच और सॉफ्ट टच, कैसे है कि नहीं है? He is a easy touch. I would say like if you have your father and he is soft touch, he is an easy touch, you are fortunate, you are lucky. आप लकी है। आप जब Yes. पैसे मांगोगे आपको मिल जाएंगे, आप जब कुछ कहोगे वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। So you are lucky. Yes, you are fortunate. But my father has never been so. He has never been a soft touch for me. He has never been a soft touch. He has never been an easy touch. तो मेरे लिए वो कभी easy touch या soft touch नहीं रहे। हेलो, टच को अगर आप देखें, टच का मतलब मेनली संपर्क में रहना। ओके, लॉन्ग टाइम नो टच, यू आर आउट ऑफ टच। सम अप कर रहा हूं मैं बस इसको। You are out of touch. Be in touch. Keep in touch. You have lost touch.
हाँ, देयर वॉज नो कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था जी। यस, हेलो। अच्छा, कभी कभी आप Yes, ऐसा sir. भी बोल देते हैं, जैसे टच के रिगार्डिंग एक और शब्द यूज किया जाता है, आपने शायद सुना हो, टच वुड। Touch wood. Touch, yes, इसमें सॉन्ग भी है सर, दैट्स सॉन्ग वेरी क्या है? राइट, दैट्स वेरी वेरी कॉमन, वो बहुत कॉमन है, नजर ना लगे। यस, टच Yes, वुड, sir. नजर ना song भी लगे। है। Yes, sir. Yes, sir. या यू नो, Touch wood. यस, टच वुड, We always say sir, touch wood. We always say. मतलब आप नजर ना लगे, कोई सुन ना ले। कई बार आप ऐसा माना जाता है, अंग्रेज ऐसा मानता है कि आप लकड़ी को टच कर दोगे तो कोई स्पिरिट या कोई भी काली छाया आपकी बात नहीं सुनेगी और वो कुछ बुरा नहीं करेगी आपका। ये इस तरह से बोला जाता है, माना जाता है। इसके पीछे का जो स्टोरी है वो एक यही है कि आप लकड़ी को आप पकड़ लें तो कोई भी आपके आसपास जो एक स्पिरिट है, बैड स्पिरिट, इविल स्पिरिट, वो शायद आपकी बात नहीं सुनेगी और कुछ बुरा नहीं करेगी। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, पिछले मुझे 2 साल से कोई खास मैं बीमार नहीं पड़ा हूं, टच वुड। हाँ, आगे ऐसा ना हो, Yes, sir. नजर ना लगे। हाँ, देखिए आप, बराबर मैं पढ़ाता रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग ऑल द पीपल कंटिन्यूअसली एंड आई हैव नॉट बीन वेरी सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, टच वुड, टच वुड। यस, तो नजर ना लगे तो हम कई बार ऐसा बोल देते हैं। तो टच इज ए नाइस वर्ड, एक अच्छा वर्ड है, और यूज इट डेलिबरेटली, इसको यूज करें आप, खास करके संपर्क में रहने के लिए बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। यस, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। कई बार आप अभ्यास में नहीं है तो भी आप ऐसा बोल सकते हो, यू नो, आई एम आउट ऑफ टच नाउडेज। मैं जैसे अभी 2 3 4 5 साल पढ़ाना बंद कर दूं, कोई फिर मेरे से बोले सर स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश, तो मैं उसको ऐसा ही बोलूंगा, यार, यू नो, आई एम आउट ऑफ टच विद इंग्लिश, एक्चुअली आई एम आउट ऑफ टच विद टीचिंग। यस, सचिन को अगर आप लेकर के आए, आप सचिन को वनडे खिलाओ, आप वनडे 50 ओवर्स का गेम खिलाओ आप, तो सचिन शायद यही बोलेगा, आई एम आउट ऑफ टच नाउ, आई एम आउट ऑफ टच विद क्रिकेट। अब क्रिकेट से मेरा उतना, मैं अभ्यास में नहीं हूँ, ठीक है, यानी अब मैं उतना प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, तो आई एम आउट ऑफ टच विद इट, तो मैं नहीं कर सकता उस काम को। तो आप किसी काम को बराबर कर रहे हैं जी, तो आप बिल्कुल उसको भले अच्छे से कर सकते हैं, राइट। सो आई वुड से टू यू, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिएगा, बी इन टच विद इंग्लिश। क्या बोलेंगे आप? Being Touch touch with with English. English. अब सिर्फ लोगों से ही कम्युनिकेट नहीं करना है, लोगों के ही संपर्क में नहीं रहना भैया, इंग्लिश के भी संपर्क में रहना है। यस, हाँ, आप इसको भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। सो बी इन टच विद इंग्लिश, कैसे बोलेंगे आप? Being touch within English. Touch with राइट, इन टच। English बोल सकते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स, कब तक आप मैथमेटिक्स के मास्टर रहेंगे? हाँ, जब तक टच में रहेंगे। as long as you are in touch with mathematics, हेलो, Practice. जब तक आप टच में हैं, as long as you are in touch with mathematics, हाँ, you will be the master, you will be the master of your subject, या आप मास्टर बने रहेंगे। हाँ, once you are out of touch with mathematics, you will stop solving mathematics questions. Yes, तो आपको वो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, या so be in touch with your subject, be in touch with English, be in touch with something, कोई गेम है, be in touch with that। हाँ, तो टच का एक अच्छा सा इस्तेमाल है। आई होप यू मस्ट हैव नोटेड डाउन सम थिंग्स, और कुछ चीजें आपने नोट डाउन की होंगी, और उनको आप प्रैक्टिस में जरूर लीजिएगा, और कुछ लिख करके आप मेरे को भी भेज देंगे।